Good morning, students. Today I am going to discuss a very important chapter in inorganic chemistry, that is coordination compound. Students, I would like to tell you generally 2 or 3 questions in every year come in competitive exam from this unit. That is why this chapter is most important and you are to understand with full concentration. Let's start coordination compound. First of all, you are to understand salt. I am dividing salt into 2 categories: simple salt and mixed salt. Mixed salt. Students, first you understand what is salt. You know, salt is that species which contain cation and anion. I am writing this KCl, potassium chloride. In this K, that is cation, or this Cl is anion. In this species, cation and anion is present. That is why it is salt. Or this is simple salt. Simple salt, why I am saying it is simple salt? Because it contains 1 cation and 1 anion. So simple salt means contain 1 cation and anion. एक कैटायन और एक एनायन जिसके अंदर प्रेजेंट है, सच काइंड ऑफ स्पीसीज को हम क्या कहेंगे? सिंपल सोल्ट कहेंगे. एंड यू नो हाउ इज इट प्रिपेयर? अदर एग्जांपल यू टेक NaCl, वेल नोन एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, एंड दिस इज आल्सो ए सिंपल सोल्ट बिकॉज sodium ion and chloride ion is present. And how it is prepared? Reaction between acid and base. There is a formation of salt. There is a formation of salt. Now take here acid HCl react with NaOH to form what? NaCl. Neutralize हो जाते हैं acid and base and give salt. I think you have got all these points regarding salt. Very clear to you? Salt means carry cation and anion. Simple salt means where 1 cation or 1 anion present. Now I am taking mixed salt. Mixed salt का मतलब number of salts are mixed here. Number of salt are mixed here. Or you can say here more number of cations and anions are present. Such salt को हम क्या कहेंगे? Mixed salt कहेंगे. I am writing very well known example of that. K2SO4. One salt I am taking this K2SO4. Al2SO4 thrice 24H2. You see this example, and this is well known example, and name of this salt is potassium. This is potassium, K2SO4. You are aware of it. You deal this salt in practical lab or in laboratory, where you prepare crystal of this potassium, K2SO4Al2. अब you see here K2SO4. Here this is cation, this is anion. Here this is cation, this is anion. K potassium ion. Here sulfate ion. Here aluminium ion. Here sulfate ion. So in this you can see more number of here potassium ion, aluminium ion, sulfate ion. More number of cation and ion are present in this. Or this is the mixture of 2 salts, potassium sulfate and aluminium sulfate. So this is mixed salt.
or you may take another example. Here I am writing ferrous sulfate and ammonium sulfate. This is also very well known example of mixed salt. This is more salt. More salt. This is more salt. So that is the difference. Simple salt and mixed salt. Simple salt means where one cation or one anion present, or in mixed salt more number of cations or more number of anions are present. Such salt को हम क्या कहेंगे? Mixed salt कह देंगे. Mixed salt. Now mixed salt can further classified. जो mixed salt है उसको we can further classify into two categories: double salt and coordination compound. Mixed salts are of two kinds: double salt and coordination compounds. See here, double salt. Now you take this example, potassium. This is mixed salt. Now if we add into water, अगर आप इसको वाटर में डिसोल्व कर दें तो व्हाट हैपेंस? दिस इज कंप्लीटली डिसोसिएट, और यू कैन से कंप्लीट आयनाइज हो जाएगा लाइक दिस 2K पॉजिटिव. दिस इज SO42 नेगेटिव. हियर दिस एल्यूमिनियम 2Al 3 positive, or this 3SO42 negative. ये क्रिस्टल फॉर्म है. नाउ दिस इज मिक्स सॉल्ट. व्हेन वी ऐड इनटू वाटर, तो इसने अपनी आइडेंटिटी को क्या कर दिया? लूज कर दिया. इट कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू आयंस. उसको हम क्या कहेंगे? डबल सॉल्ट कहेंगे. और यू कैन से जो डबल सॉल्ट है वो एक क्या है? मिक्स सॉल्ट है. जो सॉलिड सॉल्ट नॉर्मली क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं. जो सॉलिड स्टेट के अंदर स्टेबल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा इस फॉर्म में, पर जैसे ही वाटर में ऐड करेंगे तो अपनी आइडेंटिटी लूज कर देगा और कन्वर्ट इनटू आयनाइज फॉर्म, आयनाइज हो जाएगा. और जब कंप्लीट आयनाइजेशन हो जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? डबल सॉल्ट कहते हैं. ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर बच्चों. डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या डिफरेंस है? तो डबल सॉल्ट तो आपको क्लियर हो चुका होगा. जो क्या है? जो वाटर के अंदर अपनी आइडेंटिटी को लूज कर दे और कंप्लीटली आयनाइज हो जाए, ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे? डबल सॉल्ट कहेंगे. क्या कहेंगे? डबल सॉल्ट. नाउ कम टू द केस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को डिस्कस कर लेते हैं. मिक्स डबल सॉल्ट इज आल्सो मिक्स सॉल्ट. अब coordination compound is also mixed salt. For what is the difference and how it is different to double salt? This is the question. Now see this coordination compound. I am taking example of this. I am taking this FeCN twice. This is ferrous cyanide. This is one salt, because here carry Fe2 positive and Cn negative. This is one salt. You take another salt, that is 4Kc in a mole ratio 4Kc. One salt is this, one salt is this. Also in double salt we take two salt. Here also we are taking two salts, and this can be written like this: FeCN2 or 4Kc. Right now I am rearranging it, and writing like this: K4 FeCN6. This compound or this mixed salt, right now it is coordination compound.
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब आपके माइंड में इक्वेशन आता होगा, ये भी तो डबल सोल्ट की तरह है, व्हाट इज हाउ इट इज डिफरेंट टू डबल सोल्ट। इसको हम वाटर के अंदर इसकी चेकिंग करते हैं, वी ऐड दिस इनटू वाटर, और वाटर में ऐड करेंगे तो जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट है, दिस डजंट आयनाइज, ये ब्रेकअप नहीं होगा, ये हमेशा पैचअप में रहेंगे। ये कैटायन पार्ट और ये एनायन पार्ट बिल्कुल आयनाइज नहीं होंगे, सिर्फ आउटसाइड जो पार्ट है वो आयनाइज होगा। दिस कैन बी रिटन लाइक दिस 4K पॉजिटिव एंड हियर FeCN6 और दिस वन 4 नेगेटिव। अब इसको मैंने ब्रेक ऐसे कर दिया, तो इसका मतलब यू कैन सी दिस coordination compound, because it is not completely ionized, only it is partially ionized, only outside the square part is ionized and this square bracket part is in patch up. There is no breakup of these ferrous and cyanide, so that is why it is coordination compound. और अब आपको डिफरेंस क्लियर हो चुका होगा। व्हाट इज द डिफरेंस इन double salt? Complete ionization take place. In coordination compound there is a partially ionized, तो जो स्क्वायर ब्रैकेट पार्ट है ये आयनाइज नहीं होता। इट मींस यू कैन से ये जो है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये सॉलिड स्टेट के अंदर भी स्टेबल होगा और वाटर के अंदर, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर भी ये स्टेबल रहेगा, बिकॉज पैचअप में रहते हैं ये कैटायन और एनायन। और इन अदर वर्ड्स यू कैन सी अब मोर डिटेल इन दिस यूनिट वी आर टू डिस्कस अबाउट अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड वी आर टू टेक इन डिटेल ऑफ दिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। See here, I am writing this K4 and this is Fe और this CN6। मेनली क्या है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को आल्सो वी से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। दिस इज आल्सो कॉल्ड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ये कॉम्प्लेक्स है कैसे? क्योंकि ये जो है इसके अंदर ये सेंट्रल मेटल एटम है, सेंटर में है ये, और इसके साथ ये CN है ना, ये जो CN है, अब इनको डिस्कस करेंगे टाइम बीइंग। देखो इनको हम लिगेंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लिगेंड्स। अभी क्लियर करते हैं पॉइंट को। देखो अब इसके अंदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या है, Fe को हमने सेंटर में रख रखा है, Fe, और इसके साइड में आपके साइनाइड आयन है, साइनाइड आयन, और ये साइनाइड आयन रिच है। क्या है? रिच। और इसमें अगर मैं चार्ज की बात करूं तो ये सेंटर मेटल एटम के ऊपर +2 चार्ज आ जाएगा। आगे हम इसको बताएंगे कैसे आएगा। देखो लिसन, अब ये फेरस सेंटर मेटल एटम है, ये डेफिशिएंट है, हैविंग पॉजिटिव चार्ज, और इसके पास डी ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल भी होंगे। और साइनाइड हैविंग नेगेटिव चार्ज, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच है, तो दे कैन डोनेट लोन पेयर और दे कैन डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू दिस डेफिशिएंट सेंट्रल मेटल एटम एंड फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड. That is why it is called coordination compound. In coordination compound, what happens? Central atom is surrounded by number of species, number of electron rich species through coordinate bond. तो such compound are called coordination compound. उनको हम क्या कहेंगे? Coordination compound कहेंगे. Right now, I am going to discuss various types of coordination compound. Coordination. You make the heading classification of a coordination compound. अब हम
क्लासिफाई करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को। सी क्लासिफिकेशन, हाउ टू क्लासिफाई, क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एंड स्टूडेंट्स यू नो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या है? सिंपल सॉल्ट है ना, मिक्स सॉल्ट, और सॉल्ट में क्या होता है? केटाइन और एनाइन होता है। तो फर्स्ट कैटेगरी में आई एम टेकिंग, चलो फर्स्ट यू टेक द एग्जांपल, दिस एग्जांपल K4 and FeCN6, K4FeCN6, and in this PC, in salt what happens? फर्स्ट क्या होता है? जैसे सिंपल सोल्ट की मैं बात करूं, NaCl, तो Na क्या आपका केटाइन पार्ट है, Cl क्या है ये एनाइन पार्ट। तो पहले क्या होता है? केटाइन होता है, बाद में क्या होता है? एनाइन। लाइक दैट ये वाला जो पार्ट है ये क्या होगा इसमें? केटाइन, और ये वाला क्या होगा? एनाइन पार्ट होगा। दिस इज एनाइन पार्ट। पर व्हाट इज डिफरेंस हियर? ये जो पोटेशियम है सिंपल है ना, और ये आपका इसके साथ अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू, तो ये सिंपल नहीं है, ये क्या है? कॉम्प्लेक्स है। तो ये क्या हुआ? ये कैसी टाइप है? इसके अंदर ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की कैसी टाइप है? जिसके अंदर है केटाइन पार्ट क्या है आपका? सिंपल केटाइन है, मैं केटाइन को C+ से रिप्रेजेंट करता हूं। और ये एनाइन पार्ट क्या है इसके अंदर? कॉम्प्लेक्स है, तो V से इट इज कॉम्प्लेक्स एनाइन। एनाइन के लिए मैं A- रिप्रेजेंट करता हूं। तो दिस इज फर्स्ट कैटेगरी जिसके अंदर सिंपल केटाइन हो और कॉम्प्लेक्स एनाइन हो। आई एम टेकिंग नाउ सेकंड कैटेगरी, I am writing this CuNH3 4 और this SO4। अब देखिए पहला पार्ट क्या होगा? केटाइन पार्ट होगा, बाद वाला पार्ट क्या होगा? एनाइन होगा। तो इसमें देखो ये जो है फर्स्ट पार्ट है, तो स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट है ना पहले, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट है, तो सिंपल तो नहीं है, ये क्या आपका कॉम्प्लेक्स है ना? क्या है? कॉम्प्लेक्स। और इसको हम क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स केटाइन, कॉम्प्लेक्स केटाइन। और ये पार्ट आपका क्या है? सिंपल है, और वो क्या है? एनाइन। सिंपल क्या है? एनाइन। और यू कैन से अगर इसको वाटर में ऐड करोगे तो ये कैसे कन्वर्ट होगा? SO4 नेगेटिव में, और ये कैसे होगा? +2 में। तो दिस इज केटाइन पार्ट, दिस इज एनाइन पार्ट। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। नाउ फर्स्ट I have discussed simple cation, complex anion. नेक्स्ट कैटेगरी में कॉम्प्लेक्स क्या लिया? केटाइन। एनाइन क्या लिया? सिंपल। अब थर्ड कैटेगरी देखिए इसकी, थर्ड कैटेगरी को देखिए, थर्ड कैटेगरी देखिए। आई एम राइटिंग दिस एग्जांपल, PT प्लेटिनम NH3 4 PtCl4। See this। अब देखो इसके अंदर पहला पार्ट क्या होगा? केटाइन, दूसरा क्या होगा? एनाइन। इसमें देखो पहला भी क्या है? स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट है, दूसरा भी क्या है? स्क्वायर। तो ये आपका क्या है? कॉम्प्लेक्स है ना, कॉम्प्लेक्स केटाइन। और ये क्या आपका? कॉम्प्लेक्स एनाइन, कॉम्प्लेक्स एनाइन। तो दिस इज थर्ड टाइप, कॉम्प्लेक्स केटाइन, कॉम्प्लेक्स एनाइन। Now fourth category you see NiCO4. This is only one part, only complex part is here. अगर इसको वाटर में ऐड करोगे तो इट डू नॉट डिसोल्व, एसएच रहेगा ना? क्या रहेगा? एसएच। इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स है आपका न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। दिस इज न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। तो आप वी कैन classify coordination compound or covalence compound into 4 categories. First was simple cation, complex anion. Second was complex cation, simple anion. Third category is complex cation, complex anion, and last one is neutral complex. So these are the 4 types of coordination compounds. I think every point is clear to you, and next thing I will discuss in second lecture. Thank you from my side.